Are you really getting afraid now? Because now very little time is left for your Tested 2023 preparation, right? And you are thinking, what should I do? What should I not do so that you can save your Tested 2023 attempt? This is the normal feeling that every student is going through because lot of syllabus you have to cover, lot of contents you have to cover, very limited time you have. You are facing a lot of challenges because of the focus, because of the limited capacity that you have as an individual, and everyday things are getting updated. You are not getting good score, you are not able to get right mocks with respect to your approach for tested 2023, and this is leading to lot of fear in you. And definitely the competition is super high, the process is changing every single day, and you are thinking what is going to happen in TISNET 2023 and what will happen if you are not able to clear TISNET 2023 because of all the problems that I have just had. I want to tell you, this is the thing that every TISNET aspirant is going through at this point of time. And I want to welcome you in this video for solution of all the problems. Before that, let me quickly introduce myself. My name is Mayur Soni. I'm TIS HRM in Ilara Gupta, and I have been mentoring thousands of aspirants for TISNET preparation over the past few years. Okay, and what I have really found that most of the time people do not understand the right reasons for them to prepare for TISNET, right strategy, how to prepare for TISNET 2020 in the last few weeks, and an action plan, how to move ahead with a real goal. Okay, because of that, majority of the people fail. I was also going through the same thing when I started preparing for my own journey. And you know what is the thing that I realized? What you need actually, you need a clear roadmap every single day, what you have to do, when you have to do mocks, and how you have to prepare after you have taken the mocks. That's all really matters for your journey. And if you have that clarity, things become very simple for you to get results. So I'm going to share my experience and my students' experience, which you can leverage for getting short result in TISNET 2023. Okay. First, for the last few weeks, first of all, you should reverse engineer your entire process. How many days you have? You should have that clarity. First thing, reverse engineer. Create how many days are left with respect to your TISNET exam. Second, understand where you have to actually work on, because now you are not going to cover everything. You will not be able to cover everything. Currently, you are just covering random topics, which you are not going to get results anytime, right? If you are doing random things, it will not give you any results. So, what you have to focus on, how many days are left, where I have to actually work, how I should start working on those things. That is something that you need to think about. So, days you can count from now till 25th of February, how many days you have. Like whenever you are watching this video, just look at it कि आज से 25th of February तक कितने दिन आपके पास है कवर करने के लिए. पहला चीज तो ये करना. फिर आप past 5 year papers लो और उन पेपर्स को देख के ये समझो कि किस टाइप के चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम के अंदर. उनकी लिस्ट बनाओ उन सारे चैप्टर्स की और उनके क्वेश्चंस करके देखो खुद. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो या कोई रेफरेंस बुक से देखो, लाइक RS अग्रवाल या वायर के मॉक्स ले सकते हो आप, जो फ्री मॉक्स है वायर की वेबसाइट के ऊपर. वो मॉक्स आप लेके देखो कि आपके किस चैप्टर में मार्क्स कट रहे हैं. सिर्फ उन चैप्टर्स को ही कवर अप करो जहाँ पे आप ऑलरेडी स्कोर्स गेन कर रहे हो. उधर अपना टाइम वेस्ट मत करो. जहाँ पे आप मार्क्स लूज कर रहे हो वहाँ पे आपको स्कोर अचीव करने की जरूरत है. ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को लगता है कि वो अपनी वजह से फेल हो रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. आप अपनी वजह से फेल नहीं हो रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको उस वजह से फेल हो. तो जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब आपका एफर्ट्स ऑटोमेटिकली 80% तक कम हो जाएंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपको आती नहीं, कुछ चीजें होगी जो आपको पता नहीं होगी कि इसको क्या करना है. और हम क्या करते हैं एज ए स्टूडेंट, हमारा ह्यूमन माइंड हमको उन चीजों के ऊपर फोकस कराता है जो हम ऑलरेडी आता है, क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील करते हैं. हमें लगता है हमको फ्लो आ रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, और हम वहाँ पे वर्क नहीं करना चाहते एज ए ह्यूमन माइंड, जहाँ पे हमारा एक्चुअल में पेन पॉइंट है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में दिक्कत है. तो जब आप एक मॉक दोगे, 2-3 मॉक्स देते हो तो आपको साफ क्लियर हो जाता है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता. जो नहीं आता है वहां पे फोकस करके प्रिपेयर करना शुरू करो. जैसे कि मैंने मॉक्स देने के बाद मुझे 6 चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में नहीं आते, 3 चैप्टर रीजनिंग में नहीं आते, DI के अंदर 2 चैप्टर्स नहीं आते, तो मैं उसको फटाफट कवर कर सकता हूँ इन द लिमिटेड टाइम जो मेरे पास है. सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल. डोंट थिंक कि पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर पाओगे, अभी आप नहीं कर पाओगे.
और स्पेसिफिकली अगर आप रिविजन कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग, डू नॉट रिवाइज एवरीथिंग नाउ। गिव मॉक जो चीजें नहीं हो रही है वो कवर करना ज्यादा जरूरी है लाइफ इजी रखने के लिए और एक्चुअल में कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है कि मैं वो चैप्टर्स में क्या कवर करूं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए कि सर मेरे मैथ्स में 6 चैप्टर्स में मार्क्स कट रहे, रीजनिंग में 4 चैप्टर्स में मार्क्स कट रहे, डीआई के अंदर 3 चैप्टर्स में मार्क्स कट रहे, इंग्लिश में 6 चैप्टर्स ये वाले हैं ग्रामर के में मार्क्स कट रहे, और जीके में ये 15 टॉपिक्स है वहां पे मार्क्स कट रहे। कौन सा पहले कवर करूं? सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए जीके, क्योंकि वो एमसीक्यू होता है, एबीसीडी में से आंसर आपको टिक करने होते हैं, आपको ना कोई लॉजिक नहीं चाहिए उसका, सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड की हुई होनी चाहिए। सो फर्स्ट आप जीके कवर करो ताकि आप एबीसीडी फटाफट टिक लगा दो। सेकंड आपको कवर करना चाहिए वर्बल एबिलिटी, उसके अंदर भी एक तरीके से जीके ही, अगर आपको रूल याद है, आपको वोकैबुलरी का मीनिंग याद है, ओके, और आपको ईडीएम का मतलब याद है, तो आप उसको आराम से टिक कर सकते हो, तो वो भी आराम से हो जाता है, एबीसीडी टिक करनी होती है। फिर आप कवर करो क्वेश्चंस जिसके अंदर लॉजिक होता है, जैसे कि रीजनिंग, लॉजिक ऑफ रीजनिंग कि राइट साइड में ये बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है, तो आप रिलेट कर पाते हो रियल लाइफ में, वो भी आप फटाफट कवर कर सकते हो। फिर आप प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स कवर करो जैसे कि मैथ्स और डीआई, क्योंकि इनके अंदर आरओआई बहुत कम है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको 1 या 2-3 नंबर मिलेंगे, इसीलिए पहले ये सारे चैप्टर्स कवर करो तो ज्यादा नंबर का रिटर्न मिलेगा, तो टाइम जो इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अगर तुम मैथ्स में चले जाओगे तो तुम सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे और 2-3 नंबर का गेन होगा। पर अगर तुम इन चीजों पे पहले वर्क करते हो तो तुम्हारा 10-12 नंबर ऑटोमेटिकली गेन होंगे। और फिर लास्ट में मैथ्स डीआई को करो जिसमें आप फॉर्मूलाज पहले कवर करो और फिर उनके रेगुलर प्रैक्टिस लगाते हो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसका रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे उसमें क्या प्रिपेयर करो सर? ठीक है सर, ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो जैसे कि तुम्हारे नंबर कट रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, राइट, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। सो इफ यू आर लूजिंग योर सोर्स इन गवर्नमेंट स्कीम, क्या करना है? सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या आई है इस साल वो कवर कर लो। जनवरी 2022 से लेके अभी तक का कवर करना है तुमको, फरवरी 2023 का वो सब अभी से कवर कर लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। लेटेस्ट कंटेंट अपडेट करते रहो, उसकी वजह से तुम्हें कभी भी कोई इश्यू नहीं आए। पहला, लेटेस्ट कंटेंट अपडेट करते रहो। सेकंड, कौन सी लेजेंडरी गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आयुष्मान भारत है ना, एमजी नरेगा वो वाला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसी लेगेसी पॉलिसीज हैं जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम आती ही है, पूछा ही जाता है, वो भी कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, और थर्ड, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो लैंडमार्क है, मतलब रिसेंट ईयर्स के अंदर, इवन इंटरनेशनल भी, वो भी आप कवर करके रखो ताकि आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहे कि आप आज का कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है वो कर रहे हो, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीजें भी कर रहे हो, ये चीजें कवर। ठीक है, अब एक गलती ये करते हैं लोग कि उसको याद करने की कोशिश करते हैं। याद मत कोशिश करो, ढंग से रीड करो, हाइलाइट्स करो ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई इम्प्रिंट है, उतना ही करना है जीके के। फिर हम आगे आते हैं वर्बल एबिलिटी में। सर कैसे कवर? वर्बल एबिलिटी में सिंपल है, रूल्स पढ़ो और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस कवर करो। वर्बल एबिलिटी में वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करो। टाइप में बोल रहा हूँ यहाँ पे, टाइप पूरा सब्जेक्ट मत कवर करो, वैसे टाइप के क्वेश्चंस करो। वो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे करने हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक्स से आपको ये चीज आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और उसको सर में नोट्स कैसे बनाओ? नोट्स बनाने के लिए सिंपल है, ज्यादा पूरा का पूरा वापस से लिखो मत, सिर्फ आपके 2-3 लाइनों में उसको सिंप्लीफाई करो, हाइलाइटर्स यूज करो, चार्ट पेपर्स पे चिपकाओ, तो अपने आप तुमको रिवीजन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ओके, वर्बल होने के बाद आप फोकस करो रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में भी कौन से टाइप के क्वेश्चंस और क्या उसका छोटा सा कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक क्या, वो दिमाग में लेके आओ। ओके, सिमिलरली फॉर मैथ्स एंड डीआई, टाइप, शॉर्ट ट्रिक, ये अगर आप करते हो यू आर गुड विद रिस्पेक्ट टू कवरिंग योर थिंग। और जब आप ये चीज रोज करोगे तब अपने आप आपका प्रिपरेशन होता रहता। ओके, और लास्ट के फ्यू वीक्स में यही करना, और कुछ करने का आपके पास इतना टाइम नहीं है कि किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आप बड़ी बड़ी बुक्स को खोलो, आपके पास इतना टाइम नहीं है आप कि आप पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड कवर करो। If you are a smart student and you do not want to fail in Discipline 2023, then this is the approach that you should follow, simple and sweet. Okay, and if you want कि ये सारा mocks, first is the mocks, second is the analysis,
उसका एनालिसिस, थर्ड उसके हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स मुझे पहले पढ़ने हैं जीके में, कौन कौन से चैप्टर मुझे वर्बल में पहले करने हैं, कौन कौन से मुझे डीआई में पहले करने हैं, कौन कौन से एलआर में करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ये सब अगर आपको जानना है, विदाउट पुटिंग योर ब्रेन, जस्ट टाइप आउट आई इन द कमेंट बॉक्स एंड माय टीम विल शेयर यू अ रिसोर्स, अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप हमारी कम्युनिटी में ये सारी चीजें कर सकते हो एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग फॉर फ्री। ओके, सब आप फ्री में जान सकते हो किस तरीके से करना है। और अगर आप सीरियस हो और टिस्टेट 2023 में फेल नहीं होना चाहते हो, देन जस्ट टाइप आउट आई इन द कमेंट बॉक्स एंड गेट योरसेल्फ स्टार्टेड, क्योंकि टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। Every day these problems will become more and more stronger if you do not take action. So take action to gain confidence and eventually get results in TISTNET 2023. Do not make these mistakes that I have highlighted that normally people do in the initial part of the video, so that you can save your 1 year of time. So just type out I in the comment box and get the right guidance from the experts for this. All the best.